Hello student, from today's we will start our unit number 3 software modeling and design. Total allocated mass for this unit is 14 and the today's topic name is translating requirement model into design model. That means how to convert the requirements into the design models, जिसको हम analysis model to design model भी बोलते हैं. So these are the department vision and missions and these are the department PUs. Course outcome is after completion of this lecture we will achieve our CO3 justify make the use of software modeling to create the data design. Learning outcomes after completion of this lecture students will able to understand translating requirement model into design model, that is data modeling. Prerequisite is requirement engineering. So ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं. हमने प्रीवियस यूनिट पढ़ा यूनिट नंबर 2 रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. So translating requirement or analysis model into the design model, data model. कि how to convert the requirement or the analysis model into design model, यह भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है. For that, what is requirement for developing the software? First step is to communicate with the user and collect the requirement from the user and analysis that requirement and convert it into the design, so that the user and the developer is understand deeply how to fulfill the requirement of the customer or what exactly in the software we have to be developed. सो हर एक चीज़ को डिटेल में समझने के लिए डिज़ाइन की ज़रूरत होगी. सो उस डिज़ाइन मॉडल को हमको क्रिएट करना पड़ेगा आफ्टर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर और एनालिसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो वी हैव टू क्रिएट द फर्स्ट एनालिसिस मॉडल and then convert it into the design model for understanding in the better way to the customer and the developer also. Software design encompasses a set of principal concept practices that lead to the development of the high quality system or the product. अभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है? इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है, कंसेप्ट्स होते हैं, प्रैक्टिसेस रहते हैं, जो क्या करता है कि वो हमको हेल्प करता है टू डेवलपमेंट ऑफ द हाई क्वालिटी सिस्टम और द प्रोडक्ट, जो हमको हेल्प क्या करेगा टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सिस्टम और द प्रोडक्ट. This is our topic, translating the requirement model into the design model. Next point is design concept must be understood before the design practices are applied. अभी ज़रूरी होगा design concept को समझना before the design practices applied. Before applying the design practices, we have to first understand what is the design concept. Design practices itself lead to the creation of various representation of software. अभी design practices का रहता है कि ये हमको है ये लीड करता है किस चीज़ के लिए टू क्रिएट द वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर. हर एक सॉफ्टवेयर बिफोर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर हमको अगर सॉफ्टवेयर को समझना है तो डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हमको क्या करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर. किस तरीके से कि डिज़ाइन प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर को, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमको वो हम इजीली समझ सकते हैं एज अ डेवलपर और यूज़र भी इजीली समझ सकते हैं कि हाउ ही सॉफ्टवेयर विल बी वर्क इन द फ्यूचर और व्हाट द रिक्वायरमेंट अगेन वी हैव टू ऐड इन द सॉफ्टवेयर. डिज़ाइन practices serve as a guide for the construction activity that follows. So in short, डिज़ाइन प्रैक्टिसेस क्या है, ये हमको ये हमको हेल्प कर रहा है एज अ गाइड. इस चीज़ के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दैट मीन्स हमको डेवलपमेंट के लिए अगर जाना है तो हमारे पास में डिज़ाइन मॉडल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमको गाइड करेगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर. द डिज़ाइन मॉडल प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द सॉफ्टवेयर डेटा स्ट्रक्चर. व्हाट एग्जैक्टली प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड इंटरफेसेस एंड द कंपोनेंट दैट आर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम. स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, इंटरफेसेस क्या होंगे, इसका डिटेल हमको प्रोवाइड कर रहा है और कंपोनेंट्स जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर, से सारी चीज़ें हमको डिज़ाइन मॉडल बता रहा है. नाउ दिस इज द ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट और एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर
कि हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद में उसका एनालिसिस करके उसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इन द डिजाइन मॉडल. सो ऑन योर लेफ्ट साइड हियर इज द एनालिसिस मॉडल, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऑन योर राइट साइड डिजाइन मॉडल. ओके, so basically there are four components of design model. First one is data class design, second one is architectural design, interface design, component design. So this is the components of the design model, and the components of the analysis model are class based element, scenario based element, flow oriented element, behavioral elements. So this is the analysis model. These are the components of analysis model. How analysis model is developed? After collecting the requirement from the customer, तो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट मॉडल और हम उसको क्या बोलेंगे, एनालिसिस मॉडल अल्सो, वो हमने डिजाइन किया. बट अगर हमको एक गाइड की जरूरत है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर, सो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एनालिसिस मॉडल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा into the design model so that the user and the developer also understand in detail about the software. So how exactly the analysis model translate into the design model? Why? Because here in design model there are four components, and in the analysis model also the four components. So how each component is interact with the how each component of the analysis model interact with the component of the design model. कौन सा कंपोनेंट, कौन एनालिसिस मॉडल का कौन सा कंपोनेंट डिजाइन मॉडल के कौन से कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, ट्रांसलेट होगा, वो हमको यहाँ पे समझना है. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे एनालिसिस मॉडल में क्लास बेस्ड एलिमेंट, तो क्लास बेस्ड एलिमेंट में क्या है, क्लास डायग्राम से, एनालिसिस पैकेज से, सीआरसी मॉडल से, कोलैबोरेशन डायग्राम्स. सो दिस कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस मॉडल ट्रांसलेट इनटू द डेटा क्लास डिजाइन component and architectural design component of the design model. So you will see two arrows from the class based element out and in the design model, in the architectural design and the data class design. So in the analysis model, all these things related with the class based element translate into the डिजाइन मॉडल अंडर द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड द डेटा क्लास डिजाइन. क्योंकि क्लास डायग्राम का हम यूज करेंगे तो आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए यूज होगा, एनालिसिस पैकेज का हम यूज करेंगे, सीआरसी मॉडल्स का यूज करेंगे, कोलैबोरेशन डायग्राम्स का हम यूज करेंगे. तो दिस विल हेल्प इन द डिजाइन मॉडल फॉर क्रिएटिंग द डेटा क्लास डिजाइन एंड द आर्किटेक्चरल डिजाइन. ओके, नाउ in the same, from the class based element, in the class based element component in the analysis model, again one line out and it goes into the component level design in the design model. Okay, so again this will help in the analysis model. This component class based element in the analysis model will help in the design model, component level design component in the design model. After that scenario based element में क्या आएगा, in the analysis model use case में text, use case diagrams, activity diagram, streamline diagram. So this will help and translate in the interface design component in the design model. Again next one in the analysis model, flow oriented elements, जिसमें रहेगा data flow diagram, control flow diagram, processing diagram. This will translate in the design model component level design component, interface design component and architectural design component. And then the last one is behavioral element, जिसमें रहेगा state diagram and sequence diagram. This will translate into the component of design model, component level design and the interface design. So in that way analysis model components are helps for create the design model, so that the user and the customer are understand the software in the better way. So in short, analysis model is a raw material for developing the design model, and design model is most important for as a guide for constructing the
software. So these are the components of design model and these are the components of analysis model, and this diagram shows how translating the analysis model into the design model. सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 डिजाइन. डेटा क्लास डिजाइन होता है. सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल 4 कंपोनेंट्स का यूज करता है. तो फर्स्ट वन इज डेटा क्लास डिजाइन. तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस क्लासेस इनटू डिजाइन क्लासेस along with the data structure required to implement the software. सेकेंड होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट of the software, architectural style and design patterns help to achieve the requirement defined for the system. इंटरफेस डिजाइन होता है डिजाइन मॉडल में, जो क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम दैट इनकॉर्पोरेट्स विद इट एंड विद ह्यूमन दैट यूज इट. लास्ट वन इज कंपोनेंट डिजाइन. It transforms the structural element of the software architecture into the procedural description of the software components. So these 4 components of the design model will help us as a guide for the construction of the software. Next one is data modeling. Data modeling is the process of creating a data model for the data to be stored in the database. This data model is a conceptual representation of data objects, the association between the different data objects, the rules, etc. So data modeling क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, डेटा मॉडल किस चीज़ के लिए, फॉर द डेटा जो स्टोर होएगा हमारे डेटाबेस में. अब ये डेटा मॉडल क्या करेगा कि ये कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेगा कि चीज़ का डेटा ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन बिटवीन द डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रूल्स. Data modeling helps in the visual representation of the data and enforce the business rules, regulatory compliances, and the government policies on the data. Data model ensure the consistency in naming the conventions, default values, semantics, security, while ensuring the quality of the data. These are all the importance of the data modeling, जो हमको help करता है for the visual representation of the data and enforce the business rule, regulatory compliances, and government policies on the data. There are 2 types of data models techniques are. First one is entity relationship, that is ER model, and second one is UML, Unified Modeling Languages. First one is data object, that means entity. Data object is a representation of composite information used by the software that can be easily understood by the software. Data object क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन रहता है किस चीज़ का, कंपोजिट इंफॉर्मेशन का, जो सॉफ्टवेयर यूज करता है ताकि वो इजी तरीके से समझ सके. उस कंपोजिट इंफॉर्मेशन को इजी तरीके से समझ सके सॉफ्टवेयर, इसलिए हम यूज करते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स को. द कंपोजिट इंफॉर्मेशन मीन्स समथिंग दैट हैज अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. अब ये कंपोजिट इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट जो रहेंगे उसको हम बोलते हैं कंपोजिट इंफॉर्मेशन, जो रिप्रेजेंट करता है डेटा ऑब्जेक्ट. द ईआर मॉडल कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज. तो ईआर मॉडल का काम क्या रहता है कि इन ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम यूज करते हैं ईआर मॉडल. एंड एंटिटी इज नथिंग बट अ थिंग हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी. अभी एंटिटी मतलब क्या होता है, वो चीज जिसकी खुद की एक प्रॉपर्टी रहेगी. There are 2 types of entity. First one is strong entity or regular entity. इसमें क्या होता है, if an entity having its own attributes specified then it's a strong entity. अगर entity के पास में खुद के attributes होंगे तो वो क्या रहती है, strong entity. Example parent child relationship. A parent is considered as a strong entity. Strong entity denoted by the rectangle. Strong entity को हम किससे represent करते हैं, rectangle से. Relationship between the strong entity represented by single diamond. स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से और उसकी जो रिलेशनशिप रहती है उसको हम शो करते हैं डायमंड से. सेकंड वन रहता है वीक एंटिटी. द एंटिटी विच डज नॉट हैव एनी की एट्रीब्यूट इज नोन एज द वीक एंटिटी. अगर कोई एंटिटी के खुद के की एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे तो वो रहेगी वीक एंटिटी. वीक एंटिटी इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और वो डिपेंड किसके ऊपर में रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी. So in a example, in a parent-child relationship, child is a weak entity. It is represented by the double rectangle. इसको हम represent किससे करेंगे, double rectangle.
स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल रेक्टेंगल और उसके रिलेशनशिप को डायमंड से, और वीक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल रेक्टेंगल से. ओके, दिस इमेज shows the strong entity set and the weak entity set. Here in the strong entity set, the relationship indicated by the diamond, and this is a single diamond, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप. सो यहाँ पे जो कलर बॉक्सेस है सर्कल से, उसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, और जो ब्लैंक रेक्टेंगल है उसको हम बोलते हैं एंटिटी. दैट मीन्स एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द रेक्टेंगल and the attributes indicated by the circle, and the relationship is indicated by the diamond. Here course and student, so course is a parent and student is a child. So यहाँ पे many student having the same course, इसलिए यहाँ पे student होगा child और course होगा parent. Same thing, the attributes of student is student ID and the student name, and the attributes of the course is course ID and course name. Okay, now on your right side, weak entity set. This is the weak entity set. Why? Because this diagram shows the relationship by the double diamond. Double diamond हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? For indicating the weak entity set. Here the student attributes are batch number, address and the batch name, and the course attributes are door number and the apartment. So this is the weak entity. Now the data attributes. An attribute is a characteristics or properties of entity or the object. Attribute क्या होता है? Characteristics या फिर properties होंगे एक object के. Entities are represented by means their attributes. Entities को हम represent कैसे करते हैं? By their attributes. All the attribute having its own specific value. हर एक एट्रीब्यूट की खुद की क्या होगी? स्पेसिफिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय एंटिटी हैव एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एज एट्रीब्यूट. जैसा अगर एक एम्प्लॉय होगा जिसको हम एंटिटी बोलेंगे, तो उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड द सैलरीज. फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट: सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट. नाउ वी विल सी ईच वन इन डिटेल. This figure shows the entity and their attribute. Here the student is the entity and the ID, name, ID and contact number are the attributes of that entity. Okay, now we will see each types of attributes in detail. Following are the different types of data attributes. First one, single value attribute. अब single value attribute क्या होगा? A single value attribute is the attribute which can hold a single value for the single entity. ऐसा attribute जो क्या करेगा? एक ही एंटिटी के वैल्यू को स्टोर करके रखेगा. इसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यू. दैट मीन्स वन एंटिटी हैविंग द वन एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल, इन द एंटिटी ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट एंटिटी होगा तो स्टूडेंट नेम इज द सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट सिंस द स्टूडेंट हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर नेम एट्रीब्यूट. स्टूडेंट अगर एक एंटिटी होगा तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? नेम ऑफ द स्टूडेंट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. नाउ द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. A multi-value attribute is the attribute which can hold the multiple values for the single entity. ऐसे attribute जो एक ही entity के multiple values को store करके रखेंगे, इसको हम बोलेंगे multi-value attribute. अभी example क्या होगा? In the case of student is a entity, the attribute of student contact number could be considered a multi-value attribute since a student could have a multiple contact number. जैसा कि single value में क्या था कि student ही हमारा entity था, लेकिन student name is the एट्रीब्यूट ऑफ दैट एंटिटी. स्टूडेंट का एक ही नेम हो सकता है, इसलिए वो होगा हमारा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू क्या होगा? कि एक स्टूडेंट होगा, उस स्टूडेंट के नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं. तो ये एग्जांपल होगा किस चीज का? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का. थर्ड वन इज सिंपल एट्रीब्यूट. एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज द सिंपल एट्रीब्यूट. दैट मीन्स इट इज अ ऑटोमिक इन नेचर. ऐसे एट्रीब्यूट जो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट. अभी एग्जांपल क्या होगा? इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट होते हो, उसका नेचर कैसे होता है? एटॉमिक इन नेचर. एग्जांपल क्या होगा? इन द एंटिटी स्टूडेंट द एट्रीब्यूट स्टूडेंट एज कैन नॉट बी डिवाइडेड. अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट इज द एंटिटी, सो द एज ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड. सो दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कम्स अंडर द
simple attribute. Therefore, student age is the simple attribute of the student entity. Fourth one, composite attribute. अभी composite क्या होगा? The composite attribute are the attribute which can be further divided into subparts. ऐसे attributes जो divide होंगे subparts में. ऐसे attributes को हम क्या बोलते हैं? Composite attribute. These subparts represented the basic entities with their independent meaning. ऐसे subparts क्या represent करते हैं? Basic entities जिसके क्या रहेंगे? Independent meanings. अभी एग्जाम्पल क्या रहेगा? इन द एंटिटी स्टूडेंट नेम इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट. व्हाई? बिकॉज द स्टूडेंट नेम इज डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड द लास्ट नेम. सो एक एट्रीब्यूट अगर डिवाइड होता है नंबर ऑफ पार्ट्स में, एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट नेम. व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट नेम में तीन चीजें मिल के स्टूडेंट का नेम कंप्लीट होता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड द लास्ट नेम. सो इस टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट. And last one is derived attributes. The attribute which is not physically exist in the database. ऐसे attribute जो physically exist नहीं करेंगे हमारे database में, but its value can be calculated from the other present attributes is known as the derived attribute. ऐसे attributes जो हमारे database में present नहीं रहेंगे but उनकी value calculate होंगी from the present attribute is called as derived database. ओके, सो ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. दैट मीन्स वो एट्रीब्यूट्स हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, फिर भी उनकी वैल्यू कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एट्रीब्यूट. सो ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट. एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा? इन द एंटिटी स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट. दिस एवरेज एज इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द डेटाबेस बट इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द एट्रीब्यूट स्टूडेंट एज. एक टेबल अगर होगा, वहाँ पे अगर हमको स्टूडेंट एज का एवरेज निकालना है तो एवरेज ऑफ स्टूडेंट एज ये कहीं पे भी डिफाइन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये एट्रीब्यूट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द टेबल. फॉर एग्जाम्पल, देर आर 10 स्टूडेंट इन द टेबल एंड एवरी स्टूडेंट हैविंग द एज 25 और 20. सो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? कंसिडर करो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट की एज सेम है 20. तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 10. ओके, 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 10. सो यहाँ पे एवरेज जो मिलेगा हमको एवरेज एज का, तो वो रहेगा हमारा 20. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट. Now next one is relationship. The association between the two different entities is called as relationship. अभी relationship क्या होगा? जो दोनों entity के बीच का association रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? Relationship. That is the data object are connected to one another in the variety of different ways. जैसे data object connect होते एक दूसरे से in the variety ways, तो उसको हम बोलते हैं relationship. Example, employee work for the department, a student roll number for a course. Here, two object, person and car are the two objects. जैसा एम्प्लॉय वर्क करता है किसके लिए? डिपार्टमेंट के लिए. स्टूडेंट वर्क करता है स्टूडेंट रोल नंबर किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? कोर्स के लिए. सेम थिंग, एक पर्सन है उसके पास में कार है. सो दीज आर द टू ऑब्जेक्ट, और इनके बीच को अगर हम इनके बीच में अगर हमको कनेक्शन बताना है तो उसके लिए जो यूज़ करेंगे वो रहेंगे, उसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप. नाउ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. अब जनरली 4 डिग्री रहती है रिलेशनशिप की. फर्स्ट वन इज यूनरी, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी. दीज आर द 4 रिलेशनशिप ऑफ डिग्री. नाउ वी विल सी ईच वन इन डिटेल. फर्स्ट वन, यूनरी रिलेशनशिप. A unary relationship exists when there is a relation between the single entity. अभी यूनरी मतलब क्या होगा? जब रिलेशन रहेगा विद द सिंगल एंटिटी. यूनरी रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज द रिकर्सिव रिलेशनशिप इन विच एन एंटिटी रिलेट्स विद इटसेल्फ. यहाँ पे क्या करेगा? एंटिटी खुद के साथ में रिलेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी इन द रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन सच एज अ वुमन हु कैन बी समवन मदर, अ पर्सन दैट इज समवन चाइल्ड. एक लेडी क्या हो सकती है? एक मदर हो सकती है, किसी की मदर है, और एक पर्सन किसी का चाइल्ड है. सो ऐसे जो रिलेशनशिप रहेंगी इसको हम बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप. दिस डायग्राम शोज द यूनरी रिलेशनशिप. हियर एक मदर,
एक वुमन मदर भी हो सकती है और एक पर्सन किसी का चाइल्ड भी हो सकता है. सो पर्सन दोनों में क्या आ गया, मदर एंड पर्सन इज द पर्सन इज इन द रिलेशन. अभी वो रिलेशन क्या होगा उसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा. ओके, सो ऐसे रिलेशनशिप को हम यहाँ पे बोलते हैं यूनरी रिलेशनशिप. नेक्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशनशिप. A binary relationship exists only where is the relation between the two entities. Binary relationship कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे रिलेशनशिप होगा दो एंटिटीज के बीच में. इन दिस केस द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज 2. सो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रहेगा वो क्या रहेगा 2. जैसे कि प्रीवियस में यूनरी में आपने देखा कि एक था पर्सन और वो था इज इन रिलेशनशिप. दैट मीन्स अ पर्सन इज अ वुमन और द अनदर पर्सन, एक वुमन किसी की माँ भी हो सकती है और एक पर्सन किसी का चाइल्ड भी हो सकता है. सो ये क्या था, यहाँ पे एक ही एंटिटी खुद के साथ में रिलेट कर रहा था, इसलिए हमने उसको बोला था सिंगल रिलेशनशिप. दैट मीन्स यूनरी. बट बाइनरी में क्या हो रहा था कि ये बाइनरी रिलेशनशिप यूज होता है टू एंटिटीज के बीच में. ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टीचर टीचर्स. ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट टीचर से क्या सीखेगा, स्टूडेंट टीचर से सीखेगा, तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप रहेगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप. ठीक है, और दो डिफरेंट एंटिटीज यहाँ पे क्या होगी, टीचर एंड द स्टूडेंट. सो दिस इज बाइनरी रिलेशनशिप. थर्ड वन, टर्नरी रिलेशनशिप. A ternary relationship exists when there are the relation between the three entities. जहाँ पे तीन एंटिटीज के बीच का रिलेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे टर्नरी रिलेशनशिप. इन टर्नरी रिलेशनशिप द डिग्री ऑफ रिलेशन इज 6. इन दोनों के बीच का डिग्री ऑफ रिलेशन क्या रहेगा 6. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ स्टूडेंट एंड अ पर्सन ऑल्सो कैन बी अ टीचर. हियर द टीचर, स्टूडेंट एंड द पर्सन आर द थ्री एंटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर. दैट मीन्स स्टूडेंट इज अ पर्सन, पर्सन इज अ स्टूडेंट, student is a teacher, student learn from the teacher, teacher teaches to the student. So अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो there are 6 relation between the ternary relationship. Next one is quaternary relationship. A quaternary relationship exists when there are the relation between the 4 entities. 4 entities के बीच में अगर कोई रिलेशन होगा तो इसको हम बोलते हैं quaternary relationship. और इसमें रिलेशनशिप डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा 8. दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल एरो से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने रिलेशन मिलेंगे आपको 8. द 4 एंटिटीज एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी. अगर हम 4 एंटिटीज ऑफ एम्प्लॉय को कंसिडर करते हैं उसमें आता है मैनेजमेंट फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी एंड द एम्प्लॉय आर कनेक्टेड विथ ईच अदर वाया द रिलेशनशिप. ओके, सो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी रिलेशनशिप. This diagram shows the quaternary relationship. Here the employee, teaching faculty, management faculty and the non-teaching faculty is each one is related to with another. और इसकी जो डिग्री रहेगी इसको बोलते हैं, कितनी डिग्री रहेगी इसकी 8. ओके, टर्नरी में 6. Now the first one is mapping cardinalities. अभी mapping cardinalities क्या होता है? The term cardinality refers to the uniqueness of the data value contained in a column. Cardinality मतलब क्या होता है? जो यूनिकनेस ऑफ डेटा वैल्यूज मेंटेन होती है कॉलम में उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी. ओके, मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टू एंटिटीज बाय द रिलेशनशिप सेट. अभी किस तरीके से मैपिंग करते हैं हम, तो ये जो मैपिंग कार्डिनलिटीज होती है इसको हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज वाया द रिलेशनशिप सेट. विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप सेट हम क्या करते हैं, मैपिंग कार्डिनलिटी को डिफाइन करते हैं. किसके बीच में होगी मैपिंग कार्डिनलिटी, बिटवीन द टू एंटिटीज. कंसीडर द बाइनरी रिलेशनशिप सेट आर बिटवीन द एंटिटी ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी. सेट ए एंड सेट बी के बीच में आपको रिलेशनशिप को कंसीडर करना है विद द रिलेशनशिप सेट आर. फॉर दिस रिलेशनशिप मैपिंग कार्डिनलिटीज आर एज फॉलोज: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. नाउ ईच वन 1 to 1. One event of an object is related to the one event of another object. एक ऑब्जेक्ट है, एक इवेंट ये रिलेट कर रहा है एक अनदर ऑब्जेक्ट का एक इवेंट के साथ में. फॉर एग्जांपल, वन एम्प्लॉय हैज द ओनली वन आईडी. एक एम्प्लॉय का क्या होगा, एक ही आईडी होगा. सो दिस इज द सेट ए एंड सेट बी एंड दिस इज द 1 to 1 कार्डिनलिटी. ऑब्जेक्ट इन अ एंटिटी 1 is relate with the object in the entity 2.
सो इसको हम बोलते हैं वन टू वन कार्डिनलिटी. नेक्स्ट वन इज वन टू मेनी. वन इवेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मेनी इवेंट. फॉर एग्जाम्पल वन कॉलेज हैज अ मेनी डिपार्टमेंट्स. वन टू मेनी में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का इवेंट रिलेट करेगा टू द मेनी इवेंट्स ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि एक कॉलेज और उस कॉलेज के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है. सो वन कॉलेज हैविंग द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन टू मेनी कार्डिनलिटीज. यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वन टीचर कैन टीच मेनी स्टूडेंट. जैसा कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक टीचर है जो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन टू मेनी cardinalities. Next one is many to one cardinalities. Many event of an object is related to one event. Number of event है एक ऑब्जेक्ट के, वो रिलेट कर रहे हैं एक इवेंट के साथ में. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट हैविंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट. हियर इन द प्रीवियस वन टू मेनी क्या हो रहा था कि एक कॉलेज था, उसके नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है. एग्जाम्पल में डायग्राम में हमने देखा था कि एक टीचर नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीच कर रहा है. So this is the example of one to many, but in the many to one department having the number of student. So ये होगा यहाँ पे हमारा one department having the number of student. This is the example of many to one relationship. Fourth one is many to many relationship. Many events of one object are related to many events of another object. For example, many customer place order for the many products. ठीक है, many एक ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इवेंट रिलेट करेंगे अनदर ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ में. इसको हम बोलेंगे मेनी टू मेनी कार्डिनलिटीज. फॉर एग्जाम्पल कि एक कस्टमर मेनी कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं मेनी प्रोडक्ट्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेनी टू मेनी कार्डिनलिटीज. Now these are the some MSBD question depend on the today's lecture topic. First one, describe the translating requirement model into design model with the help of sketch. Describe data modeling with their techniques. Describe data objects. Describe data attributes with their types. Describe relationship with their types. Describe mapping cardinalities with their types. These are the basic question depend on the today's lecture topic. Summary of learning. ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू द डिज़ाइन मॉडल. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं रिक्वायरमेंट मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन. थैंक यू.